Nagaland, DK Kumar, Deputy CM Karnataka, Honorable Defense Minister and other participants from friendly countries, General Anup Chauhan, Chief of Defense Staff, Admiral DK Murray, Chief of Naval Staff, General Secretary, Chief of Army Staff, Dr. Shabni Rajeev, Chief Secretary, Government of Karnataka, Sri Rajesh Kumar Singh, Defense Secretary, Sri Sanjeev Kumar, Secretary, Defense Production, Air Marshal ESD Arthur, Chief of Air Staff, अन्य प्रत्येक और अधिकारी मीडिया के रेडियो एरो इंडिया 2025 के इनॉग्रेशन के ग्रैंड कॉम्पिटिशन पर आप सभी के बीच उपस्थित होना यह मेरे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। मैं समझता हूँ यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। सबसे पहले मैं भारत आरती के बहादुर सैनिकों को नमन करता हूँ। मैं दुनिया भर से आए मिलिट्री, इंडस्ट्रियल, एयर फोर्सेज के अफसर, टेक्नोलॉजी और डिफेंस एक्सपर्ट्स का इसे इंडिया में आगे स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। साथियों, हम अपने घर में आए हुए हर अतिथि को ईश्वर का दर्जा देते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के अनेक मैं विशेषकर उनसे अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा को शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अतिथि देवो भव is something that means that yes, is equivalent to God. This great speech volumes about the Indian culture. It shows that India is a warm and welcoming place for people from all over the world. I welcome all of you to India. I especially thank investors and their delegation who have spared their valuable time to attend this mega event. साथियों, आप अवगत होंगे इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया के कई सारे लोग तीर्थ राज प्रयाग में आपका डुबकी लगा रहे हैं। पूरी दिन आप के द्वारा संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। एक तरफ जहाँ परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयु का महाकुंभ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास हुई और विरासत आगे बढ़ा है। मुझे लगता है वह नारा भी हमारे देश में चर्चा हो रहा है। मेरा मानना है ऐसा सुखद संयोग सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। The theme of Aero India is the runway to a billion opportunity. I believe that there cannot be a more suitable theme than this. It tells us that in our country of a billion plus people, personifying a billion opportunity, this aero show can be nothing less than that. Aero India started this shows our commitment for the security of our nation. However, there is an
even bigger objective, and that is to further strengthen our symbiotic relationship with friendly foreign countries. Today, the platform of Air India has brought together government representatives, industry leaders, Air Force officers, scientists, research sector experts, startups, academia, and various other stakeholders from all over the world. The conference would be effective in bringing our partners closer together, ultimately benefiting us all. Friends often use track as buyers and sellers, where our relations are at a transactional level. However, at another level, we focus our relationship beyond buyer and seller relationship to the level of industrial collaboration. We may have research and development or production collaboration. We have many successfully graduated from co-production and co-development with the like-minded countries. Friends, as we enhance the depth of our relationship, our success has soared to greater heights. For us, there is no Indian security or Indian peace in isolation. Security, stability, and peace are shared constructs that transcend national borders. The presence of our friends from foreign countries is a testimony to the fact that our borders share our vision of one earth, one family, one future. साथियों, एरो इंडिया स्टेट ऑफ आर्ट, क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के संगम होने के कारण अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल एसेट पर आधारित संबंधों को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। हमें मिलकर आज की अनसर्टेनिटीज और आज की पर्सपेक्टिव में उभर नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, सभी की सुरक्षा की कमजोर स्थिति में काफी नहीं किया है। शांति का कटपेच शक्ति की जड़ों पर ही बढ़ा सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहाँ पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दी गई है। भारत के इतिहास का यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने न किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न ही हम किसी ग्रेट पावर राइवलरी में कभी शामिल हुए। एक बड़े देश के रूप में भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का हिमायत दिया है। और आज जब मैं यह कह रहा हूँ, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे मौलिक आदर्श की बात है। यहाँ पर कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं। दुनिया भर के कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देश विदेश के एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स और बड़े इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज की भी यहाँ मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, भारत के साथ आपका कोलैबोरेशन हम सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट में यह है ही, साथ ही साथ ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूँ, जैसे जैसे हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे, हम और आपको जो करेंगे हमारे साथ साथ पूरी दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। साथियों, आज भारत के ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर हम विकासशील से विकसित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर सेक्टर में हमें मेडिकल इम्प्रूवमेंट स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल
infrastructure, digital infrastructure, startup, ecosystem, industrial support base, जनशक्ति, innovation जैसे क्षेत्रों में आज भारत एक मजबूत स्थान बना हुआ है। यदि मैं इस वैश्विक डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, इसमें भी आज इनोवेशन की लहर तेजी के साथ चल रही है। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप, जनशक्ति, तथा इंजीनियर आज जो टेक्नोलॉजिकल एज हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रदान कर रहे हैं और सिर्फ अभूतपूर्व और वर्ल्ड क्लास की इनोवेशन के क्षेत्र में हम पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। आज भारत में जो एक वाइब्रेंट और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बना है, उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा एक कंसर्टेड, सस्टेन और वेल थॉट आउट रोड मैप ऐतिहासिक तौर पर डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर को भारत में एक नॉन इकोनॉमिक सेक्टर की तरफ देखा जा रहा था। इसे बेहतर इकोनॉमी के कंपोनेंट के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ एक नेसेसिटी के तौर पर देखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष हमने इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट किया है। हमारा प्रयास है एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, विज्ञान सेक्टर से उपरांत डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक इकोनॉमिक सेक्टर की तरह देखा जाना चाहिए। यह सेक्टर ओवरऑल इकोनॉमी के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड। कुल मिलाकर हमारी मुहिम का एक प्रमुख उद्देश्य डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर का इकोनॉमिक स्ट्रीमिंग करना भी है। पूरे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ए मोटर powering the growth engine of the Indian economy। क्योंकि कुछ ही दिन पहले सरकार ने बजट पेश किया है, तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। पिछले 10 सालों में हमने डिफेंस सेक्टर को देश का टॉप प्रायोरिटी सेक्टर बनाना है। इसका एक उदाहरण मैं इस सेक्टर के बजट की एलोकेशन में हुई लगातार वृद्धि के द्वारा भी देना चाहता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें, इस वर्ष के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 9.53% अधिक है। डिफेंस सेक्टर बजट में भी बढ़ोतरी करने से उसे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इतना ही पिछले बजट में था, इस वर्ष में हमें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के 75% एलोकेशन को देश में रिजर्व साजो सामान के एक्विजिशन के लिए रिजर्व कर रखा है। साथ ही इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी के तहत इस बात को और मजबूती से इंश्योर किया जा रहा है। भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कैपेबिलिटी वाइडर और डीपर। साथ ही विभिन्न स्कीम तथा इनिशिएटिव के द्वारा सरकार कर रही है कि इसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साथियों, यहाँ पर मैं हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर की बात करना चाहूँगा। पिछले 20 वर्षों में हमारे पहले के लिए और नए राष्ट्रीय इतिहास में एक विशेष गति आई, एक विशेष मोमेंटम आया। कई बड़े प्लेटफॉर्म पर डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और कमीशन किया जा रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। नए राष्ट्रीय इतिहास में भी शानदार दिखाते हुए कम समय में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है। हमारे डिफेंस
मैन्युफैक्चरर्स वगैरह की है तो उसके साथ तेजी से काम कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। गुजरात में टाटा एयरवाइज सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के भी C295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए किया गया जॉइंट वेंचर इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज हम सब जिस शहर बेंगलुरु में उपस्थित हैं, यह शहर को अपने आप में ही इनोवेशन का हब माना जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में यह शहर इतना रिच है, इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए अब यह शहर एरोस्पेस के मामले में भी अपना लोहा मनवा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अकेले ही यह शहर दुनिया में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, रडार्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट है। ये तमाम चीजें हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करती हैं। साथियों, आज के समय में भारत एरोस्पेस कंपोनेंट और कॉम्प्लेक्स सिस्टम असेंबली एक बहुत ही डिफॉल्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसमें पब्लिक सेक्टर के साथ हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज इस एरोशो में 452 इंडियन एग्जीबिटर और 57 फॉरेन एग्जीबिटर्स की उपस्थिति है। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टनरशिप का यह एग्जीबिशन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और हमारी बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाता है। साथियों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले एरो इंडिया से लेकर अब तक यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर विदिन 2 ईयर हमने अनेक अचीवमेंट हासिल किए हैं। कई हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे अस्त्रा मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, ऑटोमैटिक अंडरवाटर व्हीकल, अनमैन्ड सरफेस वेसल, बिना नाव गाइडेड रॉकेट जैसे कई इक्विपमेंट भारत में डेवलप किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है यानी हमने 2 वर्षों में जितनी प्रोग्रेस की है, आने वाले वर्षों में हम इससे भी कहीं आगे अधिक तेजी से बढ़ेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मजबूत कदम उठाए गए हैं, उसका शानदार रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 1.25 लाख यानी 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को भी पार कर चुका है। आने वाले समय में हम इन आंकड़ों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। यहाँ तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रश्न मेरा मानना है जिस इकोनॉमिक मेन स्क्रीनिंग की मैंने अभी बात की, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। अपनी ड्राइव, रेजिलियंस और एंटरप्रेन्योरशिप के चलते आप देश में प्रॉस्पेरिटी की एक नई लहर लाने में सक्षम हैं। दुनिया के कई एडवांस कंट्रीज में प्राइवेट इंडस्ट्री ने डिफेंस प्रोडक्शन को लीड किया है। साथियों, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी अब वक्त आ गया है प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री में बराबरी का भागीदार बने। साथियों, वर्ष 2025 को हमने डिफेंस मिनिस्ट्री में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया है। यह सरकारी स्लोगन ही नहीं है, बल्कि यह रिफॉर्म के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसमें रिफॉर्म के सिर्फ मंत्रालय के स्तर पर भी डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि इसमें हमारे आर्म फोर्सेस तथा DPSU सभी प्रॉपर पार्टनरशिप, सभी उनकी भागीदारी रिफॉर्म के ड्राइव और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी